અત્રે ઉપસ્થિત બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાને દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને આપણા સૌના લાડીલા એવા પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણમાં મારા કોટી કોટી નમન અને ઉપસ્થિત સૌ નાથપંથી ભાઈ બહેનોને મારા જય અવધૂત. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના જન્મદિન વિશેષાંક શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો અંક આવી ચૂક્યો છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે અંકનું અનાવરણ કરે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 27 માર્ચે પૂજ્યશ્રીનો જન્મદિવસ છે અને આ જન્મદિન નિમિત્તે 26 અને 27 તારીખ શનિવાર રવિવાર ભીનાર મુકામે દાદા કી સેના પ્રીમિયર લીગ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે આપણે IPL સ્ટાઇલ કરીને દરેક ટીમની હરાજી પણ બોલાવવામાં આવી હતી અને ગયા રવિવારે થયેલી આ હરાજીમાં આપણા સંપ્રદાયના ઘણા બધા ભક્તોએ ખૂબ જ આનંદપૂર્વક ભાગ લીધો અને અલગ અલગ ટીમ માટે ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવીને સ્પોન્સરશિપ કરી. એમાં અલગ અલગ ટીમના જબરજસ્ત નામો પૂજ્યશ્રીએ મૂક્યા હતા અને એ નામોની જે બોલી થઈ એમાં દાદાસ ટાઈગર ટીમ એ નામ માટે 51,000 રૂપિયા સુધીની બોલી લાગી હતી. અને આટલો જબરજસ્ત ઉત્સાહ અને એ જોવાલાયક છે. ખૂબ જ સારું ફંડ આપણે આ હરાજીથી ભેગું કરી શક્યા છે, જેનો ઉપયોગ દાદાના જન્મદિવસ નિમિત્તે બિલ્લીમોરાની આજુબાજુના વિસ્તારના જેટલા બી જરૂરતમંદ છે તેમને એક અન્નની કીટ આપીને કરવામાં આવશે, જેમાં તેલ હશે, ચોખા હશે, તુવરની દાળ, જીરું, મીઠું અને ખીચડી બનાવવાનો સમગ્ર મસાલો. આ સિવાય ભીનારમાં પણ આજુબાજુના અંદરના વિસ્તારના જે જરૂરિયાતમંદો છે તેમને પણ આ કીટ આપવામાં આવશે અને આમાં એકત્ર થયેલ ભંડોળનો આવનારા દિવસોમાં પણ આ જ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તો આવું કાર્ય નવનાથ ધામમાં જ શક્ય છે, પૂજ્યશ્રીના સાનિધ્યમાં જ શક્ય છે કે જ્યાં રમતમાં આ રીતના ભેગું થયેલ ફંડનો ઉપયોગ જન કલ્યાણ, બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાય માટે થાય છે. તો એના માટે તો ફરી દાદા માટે એક જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે આ રીતના કાર્ય કરીને, એક પ્રેરણારૂપ કાર્ય કરીને જે દાદાશ્રી સંદેશો વહેતો મૂકી રહ્યા છે એ ખૂબ જ બિરદાવવા પાત્ર છે. અને આપ સૌ પણ 26-27મી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ જોવા અવશ્ય આવો અને ખેલનો જે આનંદ છે એ લો એવી સૌને વિનંતી છે. બીજું, આજનો દિવસ શેરા રાજાની 14મી પુણ્યતિથિ છે, જે તપોભૂમિ પર આજે આપણે બેઠા છે અને જે તપોભૂમિનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે એવા કાલભૈરવના વાહન સ્વરૂપ શેરા રાજા પૂજ્યશ્રીના પ્રિય શ્વાન, એની આજે 14મી પુણ્યતિથિ છે. તો આપણે ખૂબ જ આપણું સારું અહોભાગ્ય કહેવાય કે આજે પૂજ્યશ્રીની અમૃતવાણીનો લાભ આપણે શેરા રાજાના સાનિધ્યમાં અને ગુરુદાનના સાનિધ્યમાં લેશું. આજનો ભંડારો રમેશચંદ્ર રવજીભાઈ પટેલના પરિવાર તરફથી છે, નવસારી તરફથી છે. તો પૂજ્યશ્રીને એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. નવનાથ ધામના અન્નક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. સુરેશભાઈ ગામિત ઘુટવેલ 1 કિલો રીંગણ, મહેશભાઈ ચૌધરી કણજોણ 15 કિલો ચોખા, આયુષ પટેલ અંકલેશ્વર 12 કિલો દૂધી, 20 કિલો કેળા, સંજયભાઈ પટેલ અંબાજ 30 કિલો ચોખા, 40 કિલો રીંગણ, ભરતભાઈ પટેલ મસાળ 5 કિલો પાપડી, ધનસુખભાઈ રાઠોડ સોનગઢ 20 કિલો ચોખા. તો સૌ દાદાશ્રીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે શેરા રાજાની 14મી પુણ્યતિથિના દિવસે પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત.
शेराराजाय विद्महे सर्वक्षेत्ररक्षकस्वरूपाय धीमहि तन्नो कालभैरव प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य शेराराजाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके हृदय में शिव स्वरूप माँ जगदम्बा स्वरूप विराजमान ऐसे हमारे सदगुरु श्री सानानाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जिस दिव्यात्मा की 14वीं समाधि तिथि के अवसर पर हम सब जिस दिव्यात्मा के शरणों में आश्रित हुए हैं, ऐसे काल भैरव के वाहन स्वरूप कर्मनिष्ठ और हमें सदा रक्षण देने वाले सर्व क्षेत्र रक्षक ऐसे सिरा राजा के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर शेरा राजा की 14वीं समाधि तिथि का अवसर है और हर साल मैं उनके स्मरण में एक श्रद्धांजलि रूप से सभी बच्चों को एकत्रित करते हुए खीर पूरी का भोजन मैं देता हूँ। साथ साथ हमारे गांव में जितने भी अन्य पशु प्राणी हैं उनको भी आहार के रूप में दूध बिस्किट या जो भी कुछ है वो भी मैं देता हूँ। और यह मैं इसीलिए करता हूँ कि शेरा राजा के रूप में एक श्वान के रूप में जो दिव्य आत्मा 11 महीने के लिए मेरे पास रहा और उसके आने के बाद आज हम जहाँ जिस भूमि के ऊपर हर गुरुवार पर प्रवचन सुनते हैं, भंडारा करते हैं, भजन करते हैं, यह भूमि की प्राप्ति शेरा राजा के आने के बाद हुई। जब तक उसका मेरे जीवन में आगमन नहीं हुआ था या जब तक उसके चरण इस भूमि के ऊपर नहीं लगे थे, तब तक नवनाथ धाम के लिए ये भूमि उपलब्ध नहीं हुई थी। जिस दिन उसका आगमन हुआ तारीख 27 मार्च 2007 में, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आज जिस भूमि के ऊपर हम बैठे हैं उसके लिए बातचीत हुई और ठीक 11 महीने के बाद शेरा राजा समाधिस्थ होने के पहले पहले यह भूमि का दस्तावेज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके आने के बाद यह भूमि हमें प्राप्त हुई और इसीलिए उसकी समाधि की स्थापना मैंने इसी भूमि के ऊपर, आप जहां बैठे हैं उस स्थान के ऊपर मैंने की। और उसका एक ही अर्थ है कि जो लोक कार्य हम सब कर रहे हैं या जो धर्म कार्य हमारे सदगुरु की कृपा से बरसों से हम कर रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ मानव ही सहयोगी हो। यहां पर्यावरण में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु धर्म कार्य के लिए सहयोगी होते हैं और उसका दृष्टांत
हमने रामायण में भी देखा है कि जब सेतु बंध बनाने की तैयारी थी और सेतु बंध के निर्माण में जब सभी वानर अपनी अपनी क्षमता से समुद्र में पत्थर को डाल रहे थे, तब वहां एक छोटी सी गिलहरी वो आती है, समुद्र के बाजू से थोड़ी सी धूल अपनी पूंछ पे उठाती है और समुद्र में आके वो डालती है। जब तक ये सेतु बंध बनता रहा और राम सेतु जब तक निर्माण होता रहा, तब तक छोटी सी गिलहरी ने अपनी पूंछ पे से जितनी भी धूल आई उसकी रचकणें समुद्र में वो डालती गई। और जब ये कार्य निर्माण हुआ, ये कार्य संपूर्ण हो गया और जब श्रेय लेने की बात आई तो किसी ने कहा कि ये सेतुबंध का निर्माण नल और नील के कारण हुआ है। किसी ने कहा हनुमान जी ने राम शब्द लिख के जो पत्थर डाले हैं उसी के कारण ये निर्माण हुआ है। किसी ने कहा पूरी वानर सेना के कारण हुआ है। लेकिन उस समय जो जगत नियता है, जिसका ध्यान, ऐसा कहा जाता है, वेदों ने कहा है कि चींटी के पैरों में बंधे जो घुंघरू है वो सुनने की जिसकी क्षमता है, ऐसा जगत नियता परमात्मा भगवान श्री राम, उसने कहा कि ये महाकार्य में हर कोई ने योगदान दिया, लेकिन यह महाकार्य में जिसने संपूर्ण सहयोग दिया है वो और कोई नहीं, आप कोई नहीं, ये छोटी सी गिलहरी है जिसने अपनी क्षमता से धूल उठा उठा के इस समुद्र में डाली। यानी पत्थर तो आ गए, लेकिन पत्थर के नीचे का जो फाउंडेशन था वो गिलहरों की सहयोग से जो धूल डाली हुई है उसके कारण ये हुआ। तो आप सोचिए कि ये महाकार्य के निर्माण का श्रेय भगवान ने गिलहरी को दे दिया। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि जो भी ये महाकार्य निर्माण होते हैं उसमें केवल मानव ही सहयोगी नहीं होता, प्रकृति के जितने भी जीव जंतु होते हैं उसका भी उसमें सहयोग होता है। ठीक महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य को मारना था तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य ऐसे मारे नहीं जाएंगे और द्रोणाचार्य अगर बच गए तो पांडवों का सर्वनाश हो जाए, तो इन्हें कैसे मारा जाए। क्योंकि द्रोणाचार्य के का खुद का मन केवल और केवल उसके पुत्र के अंदर था। जब तक अश्वत्थामा को कुछ किया न जाए तब तक द्रोणाचार्य हारेंगे नहीं। यानी द्रोणाचार्य के मन को शून्य अवस्था में ले जाने के लिए भगवान ने एक रणनीति रची और उसमें ऐसा कहा गया कि द्रोणाचार्य को हम कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, और जैसे ही अश्वत्थामा मारा गया ये सुनेंगे वैसे ही द्रोणाचार्य की जितनी भी विद्याएं है वो शून्य हो जाएगी, वो शून्य मनस्क हो जाएंगे, उनके अंदर की जितनी भी शक्तियां है वो क्षीण हो जाएगी। और उसी समय जब वो शून्य मनस्क हो जाए, वो शोकाग्रस्त हो जाए, उसी समय उनका सिर धड़ से अलग कर देना है। तो कैसे ये किया जाए? तो उसी समय युद्ध में अश्वत्थामा करके एक हाथी था और ऐसे सोचा गया कि हम अश्वत्थामा को तो मार नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो अमर है। हाथी को मारने के बाद बोला जाएगा कि अश्वत्थामा मरा, और वो कौन बोलेगा? युधिष्ठिर ही बोलेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई झूठ बोल सकता है लेकिन युधिष्ठिर नहीं। और युधिष्ठिर को जब ये कहा गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गुरु के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम अर्ध सत्य बोल लेना कि नरोवा कुंजरोवा, हाथी मरा है, अश्वत्थामा नाम का या अश्वत्थामा नाम का पुरुष मरा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा मरा है। और जिस समय पे ये बात अफवाह के रूप में रण मैदान में फैली
और फैलती हुई द्रोणाचार्य के पास आई कि अश्वत्थामा मारा गया। सबको पूछा, सबने कहा अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक युधिष्ठिर कहेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। और युधिष्ठिर ने कहा नरोवा कुंजरोवा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, पुरुष मारा गया। जैसे अश्वत्थामा शब्द बोला जाता है वैसे शंखनाद, घंटनाद, ध्वनिनाद वहां होता है, बाकी का कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन अश्वत्थामा मारा गया इतना शब्द जब सुनते हैं द्रोणाचार्य वहीं अपना प्राण छोड़ देते हैं। और जिस समय पे हाथी को मारा गया, भीम ने अपनी गदा उठाई और हाथी से प्रार्थना की कि मैं जानता हूं कि इस युद्ध में तेरा कोई दोष नहीं, लेकिन अगर तू इस युद्ध का सैनिक बना है तो धर्म कार्य के लिए काफी लोगों ने बलिदान दिए हैं, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा बलिदान लेने वाला हूं। 2 हाथ से क्षमा मांगी और भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा। आप सोचिए, अगर अश्वत्थामा नाम का हाथी मरता नहीं और द्रोणाचार्य मरते नहीं तो कभी भी अधर्म का नाश होता नहीं। अधर्म का नाश, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा और द्रोणाचार्य का वध हुआ, उसके बाद ही धर्म स्थापना हो पाई। हमने भीम को श्रेय दिया, अर्जुन को श्रेय दिया, सबको हमने श्रेय दिया, घटोत्कच को श्रेय दिया, लेकिन कभी भी पूरी महाभारत की कथा में अश्वत्थामा नाम के हाथी को श्रेय नहीं दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी बलिदान देता नहीं, धर्म स्थापना होती नहीं, तो आज के इस घोर कलयुग में हम लोग भी बैठ के भक्ति भजन भाव कर सकते नहीं थे। तो अश्वत्थामा नाम के हाथी का योगदान धर्म कार्य के पीछे था। एक गिलहरी का योगदान राम कार्य के पीछे था। वैसे मैं ऐसे मानता हूं कि नवनाथ धाम के जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें यहाँ के पर्यावरण के सभी जीव जंतु का योगदान है, और उसमें एक योगदान शेरा राजा की समाधि का भी है कि उसके आने से ये भव्य भूमि हमें प्राप्त हुई, ये यज्ञ भूमि हमें प्राप्त हुई, और उसी के कारण आज हम सब यहाँ भजन कीर्तन भक्ति भाव पूजन कर रहे हैं। साथ साथ शेरा राजा की समाधि के निर्माण के बाद हम सब जो भी यहाँ आस्था रखते हैं, ये आस्था भी परिपूर्ण होती है। कई भक्तों के जीवन के ऐसे अनुभव है कि जिसने यहाँ आके जो कुछ बोला है, आज तक यहाँ जो कुछ बोला गया शेरा राजा की कृपा से वो मनोरथ पूरे हुए हैं। और इसीलिए कई भक्त आते हैं और हर गुरुवार को यहाँ श्रीफल चढ़ाते हैं। कई भक्त आते हैं जो यहाँ दूध चढ़ाते हैं, कई भक्त आते हैं यहाँ दक्षिणा रखते हैं। कई ऐसे भी भक्त है या ऐसे भी नास्तिकवादी है जिन्होंने एक समय पे कहा था कि ये अंधश्रद्धा है और श्वान की कभी समाधि हो ही नहीं सकती, ये अंधश्रद्धा है। लेकिन ऐसे जो कहने वाले भक्त थे वो जब मेरे साथ ईशावास्यम उपनिषद के 4थे सूत्र में शिरडी साकोरी संस्थान में जब आए, और उस समय पे शिरडी साकोरी संस्थान में उपासनी बाबा के आश्रम में माता गोदावरी का एक प्रिय श्वान था, उसकी समाधि उन्होंने वहां देखी, और उसकी समाधि के ऊपर वहां लिखा था कि चेतस रूपी श्वान की समाधि वहां गोदावरी माता के आश्रम में रखी हुई थी। और वहां लिखा हुआ था कि डॉग इज गॉड, गॉड इज नॉट डॉग, लेकिन डॉग इज गॉड। भगवान स्वान नहीं हो सकता लेकिन स्वान ईश्वर हो सकता है। और ऐसी समाधि के जहां उन्होंने दर्शन किए, उसकी मूर्ति के दर्शन किए, तब ऐसे जितने मानने वाले थे, क्योंकि भक्त गण जो होते हैं उसमें भी विभाग होते हैं, कई ऐसे विभाग में ऐसा है जो आस्तिक होते हैं, गुरु जो कहे वो मानते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, मानते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। आप लोग ऐसे हो जो मानते हो,
इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और कई तो ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो ऐसे जितने भी कोई भक्त थे जो मानते नहीं थे, जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। लेकिन माता गोदावरी के आश्रम में जब चेतस की समाधि उन्होंने देखी, माता गोदावरी के आश्रम में जब तोते की समाधि देखी, माता गोदावरी के आश्रम में कौवे की समाधि जहां देखी, तब उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये पशुओं की समाधि क्या बात है, यहां पशुओं की समाधि बनी है, ये सब कैसे है? और ये पशुओं की जो समाधि बनी है धन्य है कि माँ ने यहां पशुओं की समाधि बनाई। मैंने कहा आपने मान लिया कि धन्य है पशुओं की समाधि बनाई, तो हमने आश्रम में शेरा की समाधि बनाई, उसके लिए तो आपने कभी नहीं माना। यानी ऐसा ही होता है कि जहां हम आते हैं वहां जो भी कुछ निर्माण हो उसके महत्व को नहीं जानते। यहां आपको गंगा जल दिया जाए, ये गंगा जल नहीं, लेकिन गंगा के घाट पे जाएंगे वहां गंगा जल का महत्व हो जाए। यानी जो सहज मिलता है, गुरु कृपा से जो मिलता है, उसके महत्व को हम नहीं जानते। लेकिन जहां दुनिया में आप जाओ और वहां कुछ देखो, तब आपको मानना पड़ता है कि हमारे गुरु के आश्रम में जो भी कुछ निर्माण हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और ये भी सत्य है। और वहां उन लोगों ने माना। मैं गया था सज्जनगढ़ के ऊपर, तो सज्जनगढ़ के ऊपर भी, शायद सज्जनगढ़ के ऊपर, वहां भी स्वान की समाधि थी। रायगढ़ के ऊपर वहां भी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वान की समाधि रखी हुई है, और उनके स्वान का नाम था वाग्या। वाग्या यानी वाघ। वो मिश्रित श्रेणी का स्वान था और छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रिय था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वान से रहा नहीं गया और वाग्या ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जाने के लिए जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उस अग्नि में उसने छलांग मारी थी। तो आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने स्वान की समाधि बनाई। यानी कहने का अर्थ है, जो ज्ञानी है, जो सृष्टि के सभी जीवों में जो परमात्मा का दर्शन करता है, जिसने उपनिषद को पढ़ा ही नहीं, जिसने वेदों को जाना ही नहीं, वेद श्वास तारा निर्वाण, जिसने वेदों को अपना श्वास बनाया है, वेदों की जितनी भी आज्ञा है जिसने अपने श्वास में उतारी है, ऐसे जितने भी पुरुष है, वो सिर्फ मानव का ही नहीं, पशु पक्षी और प्राणियों का भी सम्मान इसी रूप में करते हैं। और इसलिए शेरा राजा की समाधि बनाने का विचार उसी दिन से मुझे आया था कि हम यहाँ, ये काल भैरव है, यह जो भूमि हमें मिली है उसका रक्षक है, ये जो है कोटवाल है, तो क्यों ना काल भैरव के स्थान के रूप में, कोटवाल के स्थान के रूप में, क्षेत्र रक्षक के स्थान के रूप में हमारे नवनाथ धाम में शेरा राजा की समाधि का निर्माण हो। और यही विचार को करते हुए मैंने यहाँ शेरा राजा की समाधि का निर्माण किया। भागवत गीता में भी कहा है, और भगवत गीता ने कहा है कि द्विभूत सर्गो लोकेस्मिन देव असुर एवच, कि इस पूरी सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक प्राणी असुर और एक प्राणी देव। देव कोटि के जितने भी प्राणी होते हैं वो वेदों ने जो कहा है, धर्म ने जो किया है, उसका आचरण करते हैं। और असुर कोटि के जितने भी होते हैं वो कभी भी ऐसी वस्तुओं का आचरण नहीं करते। उनके मन में जो भोग विलास है या जो भी कुछ इच्छाएं है उसके अधीन वो आचरण करते हैं। अब यहां द्विभूतो स्वर्ग, भूत शब्द का उपयोग किया गया। भूत शब्द का अर्थ यही होता है, भूत यानी केवल मानव नहीं, पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, जीव जंतु, सब कोई। भूत का अर्थ होता है सभी जीव। कि दो प्रकार के जीव हैं, आसुरी और देवी। फर्क मनुष्य में और प्राणियों में इतना ही है
कि भगवान ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है कि अपने अंदर का जो दैविक गुण है उसका वो विकास करे। मनुष्य विवेक बुद्धि से दैविक गुणों का विकास कर सकता है और आसुरी गुणों का नाश कर सकता है। पशुओं में यह विवेक बुद्धि नहीं है कि अपने भीतर के जो आसुरी गुण है उसका वो विनाश करे। लेकिन कई पशुओं में, सभी पशुओं में दैविक और आसुरी ये दोनों गुण होते हैं। हमने हमारी आध्यात्मिक कथाओं में हमने पढ़ा है कि वाल्मीकि थे जो पहले डकैत थे, मनुष्य थे। उनका काम था डकैती करना, लूट करना। अभी दैविक गुण और आसुरी गुण जैसे सब में थे वैसे उनमें भी थे, लेकिन उनकी विवेक बुद्धि से उन्होंने अपने अंदर के दैविक गुण का विकास किया, अपने दैविक गुणों का विस्तार किया। और जितने भी आसुरी गुण थे, जैसे दैविक गुण विस्तार होते हैं वैसे आसुरी गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो अपने अंदर के दैविक गुणों का जब उन्होंने विस्तार किया तो वाल्या लुटारा से वो वाल्मीकि बने, यानी विवेक बुद्धि से मनुष्य उसका विकास कर सकता है। उसी प्रकार से आप कितने भी ऐसे दृष्टांत देखेंगे जहां मनुष्य ने अपने खराब गुणों को छोड़ा है और अच्छे गुणों को पाया है, तो वही मनुष्य साधु संत सन्यासी भी बना है। लेकिन पशु प्राणियों में बहुत कम ये गुण होता है कि अपने अंदर के दैविक गुणों का वो विकास कर सके। लेकिन वही पशु पक्षी और प्राणियों में कोई ऐसी उच्च कोटि के जो जीवात्मा होते हैं जो अपने अंदर से इस गुण का विकास करते हैं। लेकिन उनका विकास कब होता है? जब वो किसी गुरु के सानिध्य में चले जाए, जब वो किसी आश्रम के सानिध्य में चले जाए, जब वो किसी महात्मा के संसर्ग में आ जाए, तब ऐसे प्राणियों का दैविक गुण का जो विस्तार है वो बढ़ जाता है। और ऐसा जब उनका विस्तार बढ़ता है तो ऐसे पशु पक्षी प्राणी भी सृष्टि कल्याण के लिए अपने से हो सके वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि हनुमान जी का शरीर वानर का था। हनुमान जी की जितनी भी शक्तियां थी वो सब सुषुप्त पड़ी थी। लेकिन जब भगवान राम उन्हें मिले तो हनुमान जी एक ऐसे दिव्य विभूति थी कि अपने अंदर के दैविक गुण का वो विकास करता। भगवान राम के शरण में आए और भगवान राम ने जब उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान राम ने जब उन्हें कहा कि जाओ लंका में चले जाओ, तो उसी क्षण उनके अंदर की दिव्य शक्ति का विस्तार हुआ। बाकी के वानर भी थे, लेकिन बाकी के वानरों के विवेक का विस्तार नहीं हुआ, हनुमान जी का हो पाया। क्यों? कि सभी वानरों में एक श्रेष्ठ मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धि, कि सभी वानरों में एक मुख्य था। सभी प्राणियों में जांबुवंत मुख्य था। ठीक उसी प्रकार ऐसे जितने भी प्राणी होते हैं उसमें कोई प्राणियों की उच्च कोटि जो होती है वो आध्यात्मिक संपर्क में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद उनके अंदर के दैविक गुण विकसित हो जाते हैं। आप कभी नारेश्वर गए होंगे। नारेश्वर में रंगवदूत महाराज जी ने एक नीम के पेड़ के पास तपस्या की थी। अब हम सब जानते हैं कि नीम के पेड़ का एक स्वभाव है कि वो खाने के बाद कड़वा लगता है, लेकिन उसमें एक दैविक गुण भी है कि नीम का सेवन जो करे वो रोग से मुक्त हो जाता है, ये उसका दैविक गुण। लेकिन एक उसका स्वभाव है जो खाने के बाद कड़वा लगता है। अब आप देखिए, जिस नीम के पेड़ के पास बैठ के रंगवदूत महाराज ने तपस्या की थी, वो नीम के पेड़ के पत्ते आप खाना, वो आपको मीठे लगेंगे, कड़वे नहीं लगेंगे। मैंने खुद जाकर खाया है, इसलिए मैं कहता हूं कि उस नीम के पत्ते को आप तोड़ना और खाना, वो कड़वे नहीं लगेंगे। मानो मीठे भी नहीं लगते लेकिन कड़वे नहीं लगते। यानी नीम के पेड़ का जो कड़वेपन का जो स्वभाव था, एक आसुरी गुण मान लीजिए, वो स्वामी जी के संपर्क से, सत्संग से, उनकी तपस्या से वो गुण चला गया। लेकिन दैविक गुण आ गया कि
कि वो कड़वे नहीं रहे। गुणकारी तो है लेकिन कड़वापन था जो उसका निकल गया। तो आप देखिए कि वनस्पति भी जब संसर्ग में आ जाती है साधु पुरुषों के, तो अपने अंदर के आसुरी गुण वो छोड़ देती है और अपने अंदर के विवेक से अपने दैविक गुणों का वो विकास कर देती है। तो एक वनस्पति में इतना बदलाव हो सकता है, तो पशु वो तो समझते हैं। पशुओं में छठी इंद्री होती है कि दूसरों के मन को वो समझे, दूसरों की भावनाओं को समझे। छठी इंद्री का अर्थ होता है हृदय। हम सोचते हैं छठी इंद्री यानी आज्ञा चक्र, नहीं, आज्ञा चक्र छठी इंद्री नहीं है। छठी इंद्री है हमारा हृदय। हमारा हृदय दूसरों की भावनाओं को जानने वाला बने, उसे कहते हैं सिक्स सेंस। जो कुत्ते होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका हृदय दूसरों की भावनाओं को कैप्चर करता है और ऐसी भावनाओं को वो कैप्चर करता है, वातावरण में आजू बाजू बनने वाली घटनाओं को भी वो कैप्चर कर लेते हैं। तो उनकी सिक्स इंद्रियां, भावात्मक इंद्री उनकी खुली हुई। मनुष्य की भावात्मक इंद्रियां खुली नहीं है। भावात्मक इंद्रियां अपने लिए, अपने आप के भाव को जानने के लिए खुली है। इसलिए वो खुद को जान सकता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या गलत लगा, मुझे क्या सही लगा, मुझे क्या चाहिए। दूसरों की भावना को नहीं समझ सकता। आपके सामने कोई व्यक्ति आए और बिना बोले खड़ा रह जाए, आप उसकी भावना को नहीं समझ पाए। पशु पक्षी के सामने आप चले जाओ, आप बोलेंगे भी नहीं, लेकिन जैसे उसके समीप आए जाएंगे, वो आपके अंदर की भावना को समझेंगे और आपके पास सामने से। गाय के पास जाइए, गाय के पास आप गए, गाय सामने से आपके पास आएगी। श्वान के पास गए, श्वान सामने से आपके पास आएगी। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। और उसकी घ्राणेंद्री इतनी तेज होती है कि 2 किलोमीटर दूर से भी अगर आप आ रहे हो तो आपकी सुगंध उसको पता चल जाती है, आपकी भावना उसको पता चल जाती है। कोई गलत आदमी आया तो वो भसेंगे, कोई अच्छा आदमी, सात्विक आदमी आया, भसेंगे नहीं, अपना काम करेंगे, बाजू पे बैठ जाए। तो ये सब भावना जानने की क्रिया हमसे भी ज्यादा पशुओं में, मनुष्य में है। लेकिन मनुष्य सिर्फ खुद की भावना जान सकता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो खुद की जानता है, इसीलिए सबके साथ वो झगड़ता है। पशु सिर्फ प्रेम जानता है, और इसीलिए पशुओं के अंदर की भावात्मक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अपने, अगर वो साधु संत सन्यासी के संपर्क में आ जाए तो उसके अंदर का देवी गुण भी विकसित हो सकता है। हमारे आश्रम में गंगा गाय थी, काकरेज में थी। गुरुदेव के स्वप्न में आई कि मैं आश्रम में आना चाहती हूं, मुझे ले जाइए। गुरुदेव के सपने में आई। गुरुदेव ने तुरंत कहा कि इस जगह पे वो है, उसको लेके आइए। तब मोबाइल नहीं थे उस समय पे, और टेलीफोन भी हर 10 घर में एक घर में टेलीफोन होता था। तो गुरुदेव ने सुबह में उठ के एड्रेस लिख दिया जो सपने में दिखा, कि वहाँ गाय कुछ खा नहीं रही, यहाँ आना चाहती है, आप कांकरेज जाए और वहाँ से गाय को लेके आए। यहाँ से स्वयंसेवक गए, जैसे दरवाजे में उस व्यक्ति के पास गए और उनको कहा कि हमें ये गाय चाहिए, तो वो गाय के मालिक ने कहा कि एक भी बिना रुपये के हम आपको दे देंगे, ये दूध नहीं देती, हम उसको देना ही चाहते हैं। उसको दे दिया गया। जैसे टेम्पो रखा, गंगा गाय को चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप वो चढ़ी। बीच रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं, गुरुदेव ने भी यहाँ कुछ नहीं खाया। जैसे गंगा आई वैसे गंगा गुरुदेव के पास आई। गुरुदेव ने जो खिलाया खाया, और अंत समय तक गुरुदेव के सामने ही वो रही। अब आप सोचिए कि ये कैसी भावात्मकता है कि कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके अंदर का जो दैविक गुण था इतना विकसित हो चुका था कि दादा के हृदय तक पहुंचा, और दादा ने तुरंत उसे बुला लिया कि उसको लेके आई। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि ऐसे जो पशु पक्षी प्राणी होते हैं, वो मानव जीवन के उत्थान के लिए अपने अंदर से भी कामना करते हैं। गंगा गाय का एक महत्व है कि गंगा गाय जहां जहां चरने के लिए गई, जिस भूमि के ऊपर, आप मानेंगे नहीं, वो सभी जगह धीरे धीरे आश्रम के अंदर आ गई। ये जो आप परिसर देखते हो, ये भोजनशाला का, ये पहले हमारे आश्रम में आठले महाराज करके ब्राह्मण आते थे, उसकी ये जमीन थी।
बहुत शुरुआत में जब आश्रम में जगह कम थी तो यहाँ उसको चरने के लिए लाया जाता था, गंगा गाय को। ये जमीन जब आने वाली थी, ये मैंने किसी को घटना बताई नहीं थी, लेकिन ये जगह जब आने वाली थी उसके 3-4 महीने पहले मुझे रात को एक स्वप्न दिखा। उसमें हमारे आश्रम की गौ गंगा और हमारे आश्रम का वृषभ पूनम मुझे सपने में यहां बंधे हुए दिखे। जैसे ये मेरे सपने में आया, मैंने सोचा कुछ दिखा होगा, लेकिन ये जगह कहाँ आने वाली है या यहां ऐसा कुछ किया है। और यहां बबुल के पेड़ थे, लेकिन ठीक 3 महीने के बाद ये जो जगह के मालिक थे वो हमें मिले और इन्होंने ये जगह हमें दी। तो आप देखिए, ये गंगा गाय यहाँ चरती थी, ये जगह आश्रम को मिली, मुझे मिली। जहां गुरुदेव की मंदिर का निर्माण हो रहा है वो जगह में भी गंगा गाय को बांधा गया था, वो जगह भी हमें मिली। तो आप जहां जहां गंगा गाय जहां जहां घूमी है वो सभी जगह अंत में आश्रम को प्राप्त हो गई। तो कितने सालों के बाद भी उस आत्मा की कामना जहां भी है वहां से हमें भूमि मिले, ये क्षेत्र का विकास हो, यहां भोजन भंडारा और भक्ति भाव हो, ऐसी भावना रही होगी, तब जाके ऐसी भूमि इनके चरणों से हमें प्राप्त होती है। यानी केवल मनुष्य में ही, मानव में ही माधव बसता है, ये मानने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के सभी जीव, हर कोई में परमात्मा बसता है। ऐसे जीव जंतु प्राणी जब साधु संतों के संपर्क में आ जाए तो देव समान बन जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी भगवान है वो सभी भगवान के वाहन कोई ना कोई पशु है, मानव नहीं। मां जगदम्बा का वाहन वाघ है, मां अंबिका का वाहन शेर है, नर्मदा के लिए देखिए तो मगरमच्छ है। प्रत्येक काल भैरव के लिए देखा जाए तो श्वान है। ये श्वान को काल भैरव का वाहन माना गया है, और इसलिए माना गया कि काल भैरव का अर्थ होता है जो समय से डरे नहीं। वैसे श्वान का एक स्वभाव है, वो डरता नहीं, अंधेरे से भी नहीं डरता। जैसे भैरव रक्षण करता है, वैसे श्वान हमारे पूरे घर का वो रक्षण करता है। और काले रंग का श्वान काल भैरव का वाहन माना गया है। श्वान को यमलोक का प्राणी माना गया है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यमलोक से जो भी कोई आत्मा हमारे वातावरण में आते हैं, श्वान को वो सब दिखता है, और इसीलिए वो कभी रोता है तो हम मानते हैं कि अपशुकन होने वाला है। ये जो वातावरण के अंदर जितने भी फेरफार होते हैं, कभी भूकंप आए, कभी आंधी आए, ये भी पशु पक्षी और प्राणियों को पता चलता है। और जब ऐसा होने वाला हो तो उनके जो वर्तन है वो वर्तन भी उनके सोच समय पे बदल जाते हैं। तो काल भैरव ने श्वान को अपना वाहन माना, पशु को अपना वाहन माना, मां भवानी ने पशु को वाहन माना। ईश्वर के किसी भी अवतार ने मनुष्य को अपना वाहन नहीं माना। तो आप सोचिए कि मनुष्य से भी अगर कोई कोटि है, उच्च कोटि है, तो वो पशु की, क्योंकि पशु कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मानव स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए शायद साधु सन्यासियों के बीच में भी पशुओं का महत्व रहा। महामुनि मच्छिंद्रनाथ का फोटो देख लीजिए, वहां मानव कोई नहीं, महामुनि बैठे हैं, एक बकरी है और एक शेर, वो दोनों साथ में उनके सामने बैठते हैं और पानी पीते हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर यही सिखाती है कि भले प्राणी का अवतार क्यों ना हो, उनके अंदर अपने अंदर के देवी गुणों के विकास करने की क्षमता है, लेकिन कब? जब साधु संत के संपर्क में है। हम सब मानव सत्संग में जाते हैं, हर गुरुवार भरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम में कोई फेरफार हुआ आज तक? हम में कोई फेरफार नहीं हुआ। हमारे अंदर का कोई गुण बदला? जो दारू पीते थे थोड़े समय के लिए छूटा, वापस पकड़ लिया। पहला આવ્યા છોડી દીધું, પછી પાછું બધું આમ તેમ થયું એટલે પાછું પકડાઈ ગયું। પછી પાછા કે દાદા પહેલા છૂટી ગયું, પણ સારું એવું થઈ ગયું કે પેલા દોસ્ત બધા કંપની જોડે બધા એમ કે બેસે ને એમ કે થોડું લે એટલે પાછું ચાલુ થઈ ગયું।
એના કરતાં તો જાનવર હારા, કે એકવાર જે છોડી દે તે પાછા પકડતા નથી. એ બદલાઈ શકે, આપણે બદલાતા નથી. તો અહીંયાથી જ આપણે સમજવાનું कि मनुष्य जितने भी है वो बदल सकते हैं, बदलना चाहते नहीं. पशु जितने भी है उनके अंदर का विवेक एक बार जग गया तो वो उच्च कोटि के ऊपर जाते हैं और अंतर के संकल्प से मनुष्य जीवन के कल्याण की वो कामना करते हैं. और इसीलिए मेरे जीवन में भी शेरा राजा का उतना ही महत्व है जितना गंगा गाय के लिए पूज्य गुरुदेव के मन में था. और आज शेरा राजा की समाधि पे हम श्रद्धात्मक भाव से जब प्रार्थना करते हैं तो मैंने देखा है कि वो प्रार्थना सब पूरी होती है. केवल जरूरत है हमारे अंदर से श्रद्धा भाव यहाँ रखने की. इसलिए आज का जो मैसेज मैंने लिखा उसमें मैंने पुण्यतिथि शब्द को मैंने बदल दिया. पुण्यतिथि तो मनुष्य की भी हो सकती है, लेकिन जिस दरज्जे से हम काल भैरव के रूप में शेरा राजा को मानते हैं तो मैंने पुण्यतिथि शब्द ही निकाल डाला. मैंने लिख दिया समाधि तिथि, कि ऐसे जो आत्मा होते हैं वो मरते नहीं, ये समाधि ले लेते हैं. और समाधि के में जाने के बाद उनके आत्मा की जो ऊर्जा है वो सर्वव्यापक बन के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं उनके दुख दूर करने के लिए वो सक्रिय हो जाती है. इसीलिए मैंने यहाँ समाधि शब्द लिखा, समाधि तिथि, कि पशुओं को ये समाधि है. इन्हें मैंने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया, यहाँ समाधि बनाई गई है. समाधि के रूप में यहाँ बिठाया गया है उसे. साथ साथ उसके शरीर के ऊपर भस्म डाली गई है. जैसे कोई योगी पुरुष समाधि लेता है तो भस्म डाली जाती है, उसको भस्म डाली गई. गुरुदेव के कमली का टुकड़ा उसके कफन में मैंने उपयोग किया गया है. तो इतना सब जहां उसे जनई पहनाई गई है, तो इतना जब जहां उसे संस्कार मिला है, ये जो भी कोई संस्कार दिया गया है, ये संस्कार मृत्यु नहीं, मैं कहता हूं मोक्ष भी नहीं, मोक्ष से भी ऊपर समाधिस्थ अवस्था है. और इस समाधि अवस्था में हियर लाइज अ नोबल हार्ट विच कैन बेयर एनीथिंग. यहाँ ऐसा एक उम्दा आत्मा है जो हर सब कुछ सहन कर सकता है. धूप, छांव, बरसात सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके दुख जो यहाँ रख के जाते हैं उसे भी ये सहन कर लेता है. तो ऐसे उम्दा आत्मा को यहाँ समाधिस्थ किया गया है. तो आज के दिन श्रद्धात्मक भाव से हम उसके चरणों में नमन करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप काल भैरव के वाहन हो. काल भैरव के प्रतीक के रूप में आपको हम श्रद्धात्मक भाव से नमन करते हैं. हमारे क्षेत्र का यानी हमारे शरीर का रक्षण कीजिए, हमारे परिवार का रक्षण कीजिए, हमारे घर का रक्षण कीजिए, हमारे संप्रदाय का रक्षण कीजिए और हमारे राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व का आप रक्षण कीजिए. आपके अंदर से जो भी ऊर्जा है हम सबको सकारात्मकता प्रदान करें और सभी जीव जंतु सभी का कल्याण हो, ऐसी हम आपके चरणों में भावना प्रकट करते हैं, नमन करते हैं. 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और गुरु मंत्र के बाद मेरे साथ एक बार शेरा राजा गायत्री का हम पाठ करेंगे. मैं बोल रहा हूं, आप सब भी मेरे साथ बोलेंगे. शेरा राजाय विद्महे शेरा राजाय विद्महे
સર્વક્ષેત્ર સર્વક્ષેત્ર રક્ષક રક્ષક સ્વરૂપાય ધીમહિ સ્વરૂપાય ધીમહિ તન્નો તન્નો કાલભૈરવ કાલભૈરવ પ્રચોદયાત. પ્રચોદયાત. ઓમ ઓમ ચૈતન્ય ચૈતન્ય શેરારાજાય નમઃ. શેરરાજાય નમઃ. ગોરક્ષજાલંધર ચરપટાશ્ચ અડબંગ કાનૈફમચ્છેન્દરાજ ચૌરંગી રેવાણક ભર્તોરી સજ્ઞા ભૂમ્યાંબ ભુર્નવનાથ સિદ્ધ. જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ. જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ. જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ. સોમનાથ મહારાજ કી જય. છોટે દાદા કી જય. આજનો ભંડારો રમેશચંદ્ર રવજીભાઈ પટેલ પરિવાર તરફથી નવસારી તરફથી છે. અહીંયા જ બેઠેલા છે. વર્ષો જૂના ગુરુદેવના સેવક છે અને એમના ઘરે વાર તહેવાર પ્રસંગ જેમ જેમ આવે તેમ તેમ મોટે ભાગે ભંડારા કરાવે છે. અને એમની બહુ ઈચ્છા હતી કે એક ભંડારો એક કરાવવાના હતા. તો મને મનમાં એવું થયું કે 24 તારીખ અને શેરાની પુણ્યતિથિ હોય એવો ભંડારો એમને મળે, અને એ પ્રમાણે અમે ભંડારો થોડો ડિલે કરીને આજના દિવસે ગોઠવી દીધો. અને આજના દિવસે ભંડારો ગોઠવીને ભગવાનને ખીરપુરીનો પ્રસાદ આપણે ધરાવ્યો છે. તો એમનો પરિવાર આ રીતે સહયોગી થતો રહે છે. તો એમના માટે શિરારાજાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું, બધાના જીવનનું રક્ષણ થાય અને આને આ રીતે સેવા કાર્યમાં એવો સહભાગી થતા રહે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આજના સવારના મહાપ્રસાદમાં દાળ ભાત, બટાકા ટામેટાનું શાક, રાજગીરાના લાડુ અને કેરીનું અઠાણું છે. ત્યાર પછી બીજી વાત કે આજે સાંજે બધા ભક્તો સાથે ભેગા મળીને કાશ્મીર ફાઇલ્સ પિક્ચર જોવાનું નક્કી કર્યું છે. હવે જે તમે ત્યાં ટીવી પર જોતા હો ને, આજે પ્રવચન સાંભળજો તમે લોકો, કારણ કે ત્યાં જે આવે ને તે પિક્ચર જોવાના છે. પણ ત્યાં જે આવે તે વાંધો નહીં, તમે પ્રવચન ચાલુ કરીને મ્યુટ કરીને મૂકી દેજો, એટલે આપણા વ્યુઅર્સ તો જેમના તેમ રહે. તમે બે કામ ભેગા કરી શકો છો. પણ મારી પોતાની એવી ઈચ્છા થઈ ગઈ કે કાશ્મીર ફાઇલ્સ જોઈએ, રિયાલિટી શું છે તે આપણને ખબર પડે. અને પિક્ચરો તો ઘણા બને છે પણ કાલ્પનિક બને છે, આ વાસ્તવિક છે. અને આજની જનરેશનને આ વાસ્તવિકતા ખબર પડવી જોઈએ. લગભગ કોઈ સાધુ સંતો એવા હશે નહીં કે જેણે પોતાના સમુદાયની સાથે આ પિક્ચર જોયું હોય. બધા ગયા હશે તો એકલ દોકલ ગયા હશે. પણ મને પોતાને એવી ઈચ્છા થઈ ગઈ કે એક ધર્મ કાર્ય તરીકે, એક ધર્મગુરુ તરીકે મારું કામ તો બે હોય કે ભગવાનની પણ ભક્તિ કરાવવાની અને રાષ્ટ્રની ભક્તિ કરાવવાની. અને એટલા માટે હું એવું નક્કી કરી દીધું કે ચાલો આપણે બધા ભેગા થઈએ. પહેલાં એવું નક્કી કર્યું 50 જણા જોઈ આવીએ. પછી એવું થયું કે ચાલો 100 જણા જોઈ આવીએ. પછી માતાજીનો થાળ કર્યો ત્યારે મનમાં એમ વિચાર આવી ગયો કે 50-100 જણને લઈ જવાનું એ કામ તારું નથી. તારે લેવી હોય તો આખી ટોકેજ લઈ લે. અને પછી ત્યાં થાળ હતો ને ત્યાં થાળમાં મેં ડિક્લેર કરી દીધું કે જેણે આવવું હોય તો આવી શકે. તો નામ જ એટલા બધા નોંધાઈ ગયા કે જે આવે છે એના કરતાં વધારે નામ આવ્યા. કદાચ બીજા શો પર જવું પડે, પણ પછી હું ના પાડી કે એક શો ઇનફ છે. એટલે લગભગ 500ની નજીક માણસો પહોંચી ગયા છે. અને આજે સાંજના બધા ભેગા થશું અને બધા ભેગા થઈને એક સાથે બિલીમોરામાં આંટો મારીને ટોકીસ પર જશું, દેશપ્રેમના નારા બોલાવશું. અને જે પણ પિક્ચર જોવા આવે તે મોટે ભાગે બધાને કીધું છે કે ભગવો પહેરીને આવે, અને બધાએ ભગવા પહેરીને પિક્ચર જોવાનું. પિક્ચર જોઈને અંદર જે પણ સેલ્ફી પાડવી હોય તો પાડજો, બધી જ છૂટ છે તમને. અને એને પછી વાયરલ કરજો અને લોકોને બતાવજો કે અમારા દાદા ફક્ત ક્રિકેટ મેચ રમવા જ જાય એવું નથી. અમારા દાદા ફક્ત પ્રોગ્રામ જ કરે એવું નથી. દાદાનું કામ બધું જ છે કે જ્યાં જ્યાં રાષ્ટ્ર માટેની ભાવના જગાડવાની એ દરેક કાર્યમાં હું સક્રિય છું. જ્યારે મહામારી આવી તો ભંડારાના રૂપમાં આપણે બધા સુધી ભોજન પહોંચાડ્યું. જે સમયે જે દવા પહોંચાડવા લાગી તે પહોંચાડી. જ્યાં જે લાગ્યું તે કર્યું છે. અને આ વખતે મને એવું લાગે છે કે આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ, શાંતિથી જોવી જોઈએ અને જાણવું જોઈએ કે દુનિયામાં શું બન્યું છે આપણા દેશમાં. અને હવે પછી ન બને એના માટે બધાએ જાગૃત રહેવું જોઈએ.
તો આજના સાંજે ભંડારામાં દાળ ભાત, સેવનું દૂધ, બાફેલા બટાકાનું શાક, પૂરી અને અઠાણું. કારણ કે બધા પિક્ચર જોવા આવવાના છે એટલે સારું ખવડાવવું પડે. એટલે એમ બી કહે ને કે દાદાએ પિક્ચર બતાવ્યું પણ ખીરપૂરી બી ખવડાવીએ. અને પેલો ડાયલોગ છે ને કે દૂધ માંગેગે તો ખીર દેંગે ઓર કશ્મીર માંગેગે તો ચીર દેંગે. એટલે આજે આ ખીરપૂરી બનાવીએ કે આપણે ખીરપૂરી ખાઈને જ જવાનું છે. દૂધ માંગેંગે તો ખીર દેંગે ઓર કશ્મીર માંગેગે તો ચીર દેંગે. આ ભાવના અંદર હોવી જ જોઈએ આપણી અંદર. અને એટલા માટે ખીરપૂરી બનાવી કે જ્યારે આવી ભાવના કોઈ આવે ને આવું કોઈ આવે તો આપણે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું નહીં, આપણે જાતે જ એનો આપણા હાથથી બે હાથ કરી લેવાના તે સમયે. પણ આ ભાવના બધામાં જાગે એટલા માટે આપણે પિક્ચર જોવાનું છે. આમાં બી ઘણા આવ્યા જ હશે જે સાંજે આવવાના હશે, તો કંઈ વાંધો નહીં, શાંતિથી ખાઓ, આરામ કરો, પાછા જમો અને પછી પિક્ચર જોવા આવજો. બીજી વસ્તુ 27 તારીખે વરસગાંઠ છે અને હું પોતે નક્કી કર્યું છે કે આજે ઓપ્શનની અંદર જે પણ આવ્યું છે તે જે જરૂરિયાતમંદો છે એને ગોરખ ખીચડીનું સામાન આપણે આપવાનું છે. અને એના માટેની બધી 300-400 માણસો જે થશે તેને સામાન પહોંચાડશું, ત્યાં ગામમાં પણ પહોંચાડશું. અને પછી ક્રિકેટ રમશું. દાદા કી સેનાના જેટલા પણ યુવાનો છે તે બધા ભેગા મળીને અને એક નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરીશું કે હવે પછીના કાર્યમાં ફરી પાછા આપણે જોડાઈએ. તો આ રીતે જન્મદિવસ કંઈ ને કંઈ લોકસેવા કરીને મનાવવાનો. એટલે કાલનો તિથિનો અવસર હતો, તે પણ કપરાડાની અંદર જે સ્કૂલ હતી એકલવ્ય શાળા અને બીજી જે સ્કૂલ હતી તેની અંદર જઈને વિતરણ કરીને ત્યાં ટ્રસ્ટીઓએ ભેગા મળીને એ અવસર ઉજવ્યો. હવે 27 તારીખે આપણે અહીંયા ઉજવશું અને બાકીનું ત્યાં ક્રિકેટ રમશું. તો જેણે પણ આવવું હોય તે બધા આવી શકે, બધાને છૂટ છે. પણ એટલું જ છે કે આશ્રમના જે પણ સેવા કાર્ય થાય છે, ધાર્મિક કાર્ય થાય છે, એમાં તમારાથી જે રીતેનું યોગદાન અપાતું હોય એવું નહીં કે તનથી, મનથી, ધનથી, મેન્ટલી પણ જો તમે આપી શકતા હોય તો મેન્ટલી પણ આપવાનું. એમાં ઘણા ગરડા માણસો છે એ અમથા જ પાછા, એ લોકોને ખબર નથી કાશ્મીર ફાઇલમાં શું છે. પણ જ્યારે પેલા નામ લખવાની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે સૌથી પહેલાં ગઢા હતા તે પહેલાં એ લોકોને પૂછ્યું કાશ્મીર ફાઇલ હું ખબર નહીં. એમ કે આપણે તો દાદા હાથે જોવા જવાનું એટલે બેસી જવાનું, બાકી અમને કંઈ ખબર જ નહીં મળે. તો ત્યારે મેં એવું માનું કે આને બી તન, મન ને ધન તો ખરું, પણ આને કહેવાય આત્મબળ. કે જે પણ હોય તે જે બતાવે તે અમને લેવા દેવા નથી, પણ અમે આત્મબળથી જોડાઈએ છીએ કે અમે કંઈ કરી શકીએ નહીં કરી શકીએ, પણ મેન્ટલી, માનસિક રીતે અમે પૂરેપૂરા તમારી સાથે છે. તો એ રીતે પણ લોકો આવવાના છે. તો આ રીતે પણ દવાથી, દુઆથી, બધી રીતે ભાવનાથી જોડાતા રહો. જેમ 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 નવા કાર્યો આવશે, મજા આવશે, મંદિર નિર્માણ થશે ત્યારે ઓર કંઈ નવું કરશું. પણ આપણે બધા ભેગા મળીને રાષ્ટ્ર ભાવના, ભગવાન પ્રત્યેની ભાવના, ગુરુ પ્રત્યેની ભાવના, ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના બધામાં જાગૃત રહેવી જોઈએ. તો ફરી પાછા બે હાથ જોડીને નમન કરીએ અને એ જ પ્રાર્થના કે બધાનું રક્ષણ થાય, આપણા રાષ્ટ્રનું રક્ષણ થાય અને બધાનું કલ્યાણ થાય, એવી વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના સાથે શ્રી રાજાના ચરણોમાં આપણે નમન કરીએ છીએ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.